تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو؟ ان کا باپ زندہ ہوتا، ان کی ماں زندہ ہوتی، ان کے دادا زندہ ہوتے، جب یہ اسلام کا پرچم بلند کرتے تو دادا کہتے بیٹا میرے دبدبے کے سائے میں اسلام کا پرچم بلند کیا، باپ کہتا بیٹا میرے روب کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا، ماں کہتی بیٹا میری ممتا کے سائے میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ رب نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات پر احسان کرنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید ملت کانفرنس۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب وصال ہوا، ام ایمن کا کہنا ہے کہ اتنا نبی روئے اپنے والدہ کے وصال پر، اتنا میں نے مکے میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ لوگو، یہ ماں باپ ہے۔ جس دن ماں باپ کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے آج کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ آج بیٹے کو باپ کی کھانسی اچھی نہیں لگتی، اس کو اپنی ماں کا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کون ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی مت کہنا۔ ان کو جھڑکنا تو بہت دور کی بات، ڈانٹنا تو بہت دور کی بات، ان کو گالیاں دینا تو بہت دور کی بات، ان سے تیز تراری سے بات کرنا تو بہت دور کی بات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں اف بھی مت کہنا۔ اف کا معنی جانتے ہو؟ مفسرین کرام نے الگ الگ اس کی تفسیر کی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں ایک لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اف کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے کہ اگر پھوڑا نکل آئے اور اس سے مواد بہنے لگے، اولاد کو زبان سے صاف کرتے وقت اس وقت جو اف کی کراہیت آتی ہے، قرآن کہتا ہے وہ اف کی کراہیت بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو بتاؤ جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا پہلی سزا ہے ماں باپ کو ستانے والے کی کہ یہ کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ اللہ قیامت کے لیے مؤخر فرما دیتا ہے، آخرت کے لیے مؤخر فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے والی سزا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلدی اس کو دے دیتا ہے، دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، دنیا میں وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، یہ ماں باپ ہے، ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اور جب ان کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آج ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے، آج کتنا بڑا سایہ ہمارے سر سے چلا گیا۔ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے؟ باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے؟ باپ کون سی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے؟ دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ سے اف بھی مت کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان سے جب بھی بولنا تو محبت سے بولنا، ماں باپ سے جب بھی بات کرنا تو پیار سے بات کرنا، ماں باپ سے جب بھی کلام کرنا تو پیار سے کلام کرنا۔ علماء فرماتے ہیں اولاد کو ماں باپ سے ایسے بات کرنی چاہیے جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، جیسے نوکر اپنے مالک سے بات کرتا ہے، جیسے نیچے والا ادھیکاری اوپر والے ادھیکاری سے بات کرتا ہے۔ ماں باپ سے ایسے بات کرنی چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں باپ راستہ چل رہا ہے، اولاد اس کے آگے چلنے لگے تو ایسے بیٹے کو جان بوجھ کے اگر آگے چلے تو ایسے بیٹے کو بے ادبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بتاؤ باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، بتاؤ باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب باپ کی چارپائی گھر سے اڑ جاتی، اولاد نہیں ہے، مزاروں کے چکر لگاتا ہے، مولا کوئی گھر میں چراغ جلانے والا آ جائے، عالموں سے دعا کراتا ہے مولا میرے گھر میں چراغ جلانے والا آ جائے، گھر گھر جا کر کے اگر کوئی پیر آ جائے اس سے
से दुआ कराने के लिए पहुंच जाता है। ए मेरे अजीजों, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी वालिद के करीब बैठ करके देखना, वो तुम्हें बताएगा कि कितनी परेशानियां उठाई हैं उसने तुम्हारे बचपन में, कितनी दिक्कतों का सामना किया है उसने तुम्हारे बचपन में। आज तो दौलत की फरावानी है, पैसे का दौर है। अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के जाओ, ये हमारे तजर्बेकार लोग यहाँ बैठे हैं, ये तुम्हें बताएंगे कैसा गुर्बत का दौर रह चुका है। उस गुर्बत के आलम में माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने दूसरों के खेतों में मजदूरी की लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। बाप ने दूसरों के घरों में मजदूरी की लेकिन ईद पर बेटे को नए कपड़े बना के दिए। आज वही माँ बाप ईद के मौके पे, आज हमारे यहाँ अफसोस होता है कि आज वही माँ बाप बच्चों का चेहरा देखते हैं। हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे बच्चे बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाए, और माँ बाप पुराने कपड़े पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? अगर किसी ने माँ बाप को अल्लाह ने दौलत दी है तो जब वो मकान बनाएगा, 3 बेटे हैं तो तीनों को अलग अलग रूम बना के देता है, अपने लिए कोई रूम नहीं बनाता। आज वही बेटे बुढ़ापे में उसका बंटवारा कर देते हैं कि बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर पे खाएगी। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा होता है, और अगर महीने से 1 दिन पहले अगर माँ बाप आ गए तो कहता है अभी तुम्हारा महीना नहीं हुआ, तुम मेरे घर पे इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए औलाद की खातिर बाप के पैरों की जूतियां खिस गई दुआ कराने के लिए? आज वही बाप बूढ़ा हो गया, उसको हम बोझ समझने लगे। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, हम उसको बोझ समझने लगे। ऐ मेरे अजीजों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे। कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे। कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, आंखें खराब हो गई औलाद पालकर। औलाद बात करती है आंखें निकाल कर, जीते जी बाप का चश्मा ना ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। ऐ मेरे अजीजों, आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ऐ मेरे अजीजों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं। तवज्जो दीजिएगा। कभी कभी रात में चले जाया करो डुमरियागंज चौराहे की तरफ, कभी चले जाया करो बस्ती चौराहे की तरफ, कभी चले जाया करो सिद्धार्थनगर बस स्टॉप की तरफ, कभी चले जाया करो रेलवे स्टेशन की तरफ। उसमें तुम्हें रात में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के लखनऊ जाने के लिए रात में खड़ा हुआ है। ये उलमा आपको बताएंगे रात में 2 बजे 3 बजे कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में कोई बस लेकर खड़ा है, कोई ट्रक लेकर खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर खड़ा है। बेटा तो मोबाइल चला के सो गया, बेटा तो IPL देख के सो गया, बेटा तो फिल्में देख के सो गया, और वो बेटे की खातिर रात में बस लेकर के रोड पे खड़ा है, जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है। आज उस औलाद को क्या पता कि उसके बाप ने कितनी कुर्बानियां दी उसे पालने के लिए, उसे क्या पता कि उसके बाप ने कितनी परेशानियां उठाई है उस औलाद को पालने के लिए। इसका पता तब चलता है जब बाप का साया सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होता है कि
आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, उस दिन एहसास होता है कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। याद रखना नौजवानों, उनसे शहीद मिल्लत में आने वालों, ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये फोर व्हीलर लेकर के बाहर जाकर के कमाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये पूना कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई जाने वाला ये एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद से। अपना घर छोड़ना सब नहीं छोड़ पाते, अपना घर छोड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। ये बाप है जो औलाद को अपना औलाद की खातिर कोई घर छोड़ करके जा रहा है, कोई 3-3 महीने में आ रहा है, कोई 6-6 महीने में आ रहा है, कोई 1-1 साल में आ रहा है। ऐ लोगों याद रखना, इतना याद रखना, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। याद रखो, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, पत्रकार बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, पैर की हड्डियों ने जवाब दे दिया, हाथ की ताकत ने जवाब दे दिया, जब उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में कूलर चले, हमारे कमरे में गर्म हीटर का इंतजाम है जाड़ों के मौसम में। बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहा है, बाप है कि झोपड़ियों में रह के जिंदगी गुजार रहा है, बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहा है। हमारे बच्चे हर साल नया कंबल बदले, वो पुरानी रजाई ओढ़ करके अपनी जिंदगी को गुजारे। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद की खातिर परेशानियां उठाई थी? अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो। माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। नबी फरमाते हैं ऐसा बेटा माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बाप। क्या कहने साहब जिंदाबाद। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। एक सच्ची बात, दिसंबर में जनवरी में कैसा कोहरा आता है, करीब का नहीं दिखता। आप लोगों का भी तजर्बा होगा, उलमा का तो है तजर्बा। जब सर्दी के मौसम में गाड़ी घर के दरवाजे पर जब पहुंचती थी, बीवी बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले अंदर से आवाज आती थी तो माँ बाप की आती थी कि बेटा अभी दरवाजा खोल, बेटा अभी दरवाजा खोलते। ये बाप है जिसकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी घर में नहीं आया। ये माँ है, माँ फोन करके पूछती बेटा कहाँ हो, इतनी रात हो गई अभी तक घर पे नहीं आया, मेरे लाल कहाँ चले गए? बेटा दोस्तों के साथ पार्टी करता फिर रहा है। कहता है क्या माँ परेशान करती रहती है फोन करके, मेरा शौक अरमान है दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। मेरे अजीज, आज जिस माँ का फोन तूने गुस्से में काट दिया, एक दिन आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन आएगा जब मेरे वालिद हयात थे तो रोजाना शाम को फोन आता था कि बेटा आज कहाँ पहुंचे हो, आज बेटा कहाँ पर जा रहे हो, घर कब वापस आओगे। आज एक हफ्ता हो जाता, बस तिलिया वालों कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होता। ये बाप है, बाप जिसको रहती है कि मेरा बेटा घर पे नहीं आया, मेरा लाल घर पे नहीं आया। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर। हजरत शहजादे गौसे आज़म शहजादे मौलाई कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब कादरी जिन्नता शरीफ मुरादाबाद की आमद हो रही है। नारों से इस्तक़बाल करना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे आले रसूल, हुजूर पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बैठ जाएं, बैठ जाएं, नहीं रहने खड़े हो गए, खत्म होने वाली हो गया। क्या बात? हजरात, एक बच्चा है जिसका नाम शहबाज है, छोटा सा है, 8 साल का तकरीबन है, और जो है लोहरौली का रहने वाला है। जिस किसी को बच्चा मिले तो जिम्मेदार के हवाले कर दे या स्टेज पर खबर कर दे।
درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ جس دن ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اس دن احساس ہوگا کہ آج کتنی بڑی دولت ہمارے گھر سے چلی گئی، اس دن احساس ہوگا کہ آج کتنا بڑا سایہ ہمارے سر سے چلا گیا۔ میرے عزیزوں، یہ ماں باپ ہیں جنہیں فکر لگی رہتی ہے کہ میرا بیٹا گھر نہیں آیا، جنہیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ابھی میرا لال میرے گھر پر نہیں آیا۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ بھی جانتے ہوگے، ہر ماں باپ کو محبت ہوتی ہے۔ اگر بیٹا باہر کام کرنے چلا جائے تب تک ماں کو چین سے نیند نہیں آتی جب تک فون پہ بات کر کے یہ نہ پوچھ لے کہ میرے لال تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، میرے لال تم ٹھیک ہو کہ نہیں ہو۔ بیٹا اگر وہاں اس کی طبیعت خراب ہو جائے، ماں یہاں کہنے لگتی ہے کہ مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرا لال کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہوگی۔ اے میرے عزیزو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب فرماتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ اور ایسے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا، میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں انسان کی جو عقل ہے، جو سمجھداری ہے، علماء فرماتے ہیں عقل 40 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ جب سے وہ پیدا ہوا ہے 40 سال جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تب یہ عقل مکمل ہوتی ہے، اور 40 سے لے کے 60 سال تک عقل پوری رہتی ہے، اور جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تب اس کی عقل کم ہونے لگتی ہے، اس کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے، پھر اس میں بچوں والی کوالٹی آ جاتی ہے، پھر اس میں بچوں والی حرکتیں آنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ کہتے ہو نا بڑھاپے میں ماں باپ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں 60 سال کی عمر کو تب ان کی عقل کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں کا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی مت کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، محبت سے بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ اور ایسے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کا بازو بچھاؤ، اور ایک معنی اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سکوڑ لو۔ جب پرندہ اوپر اڑتا ہے تو اس کے پر کھلے ہوتے ہیں، بازو کھلے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے پنکھوں کو سمیٹ لیتا ہے، تب وہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے، اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ڈاکٹر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم پروفیسر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم ماسٹر ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم کسی اعلیٰ ڈگری کے مالک ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم IPS ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم IAS ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے، تم دنیاوی کسی محکمے میں ہوگے تو گھر کے باہر ہوگے۔ جب گھر کے اندر آؤ تو ڈاکٹر بن کر مت آنا، پروفیسر بن کر مت آنا، ماسٹر بن کر مت آنا، کوئی دنیاوی ڈگری کا ترہ لے کر کے گھر کے اندر مت آنا۔ جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو ان کا بیٹا بن کر کے آنا، ان کا لخت جگر بن کر آنا، ان کا نور نظر بن کر آنا۔ یہ ہمیں قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جب ماں باپ کے پاس جاؤ تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لو اور ایسے دعا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم۔ یہ ہے ماں باپ۔
किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ आती है, नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप की दौलत आती है। आज अफसोस होता है कि पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। माँ बाप गांव के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, कुसुम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाप बीमार है, बेटा शहर में मजे कर रहा है। बाप इधर तड़प रहा है औलाद की खातिर, उधर बेटा कह रहा है कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा है वेटिंग ज्यादा चल रही है, कोई कह रहा है फ्लाइट बहुत महंगी हो गई है। इधर बाप कह रहा है काश मैं अपने बेटे को देख लेता, काश मैं अपने लगते जिगर को देख लेता। इसकी जगह अगर बेटी होती तो बेटी टिकट का बहाना नहीं करती। ये बेटियों के दिल में माँ बाप की मोहब्बत होती है कि अगर बेटी को पता चल जाए कि मेरे बाप की तबीयत खराब है तो बेटी 50 किलोमीटर दूर भी होगी तब भी अपने बाप को देखने आ जाएगी, 100 किलोमीटर दूर भी होगी तब भी अपने वालिद को देखने के लिए आ जाएगी। ये माँ बाप है, माँ बाप। इसका पता तब चलता है जब ये साये हमारे सर से उड़ जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया, कितनी बड़ी नेमत से हम महरूम हो गए। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र करो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत करो। हर चीज तुमको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। माँ बाप के पास बैठोगे, जिंदगी जीने के तरीके आ जाएंगे, जिंदगी जीने के सलीके आ जाएंगे। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। जिससे माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। हमने देखा है दुनिया का जायजा लेकर के, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है और बेटा कोई शिमला मसूरी घूम रहा है, दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई कश्मीर की वादियों का मजा ले रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, दिल की तख्ती पे ये जुमला लिख करके ले जाना, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे तो तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएगा, साबिर खुद तेरे घर पे आ जाएगा। माँ बाप को राजी तो करो, माँ बाप की दुआ जो आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। कोई कहता है हजरत आप बरेली शरीफ से आए हो, हमारे लिए दुआ कर दो। पीर साहब मिले, आप हमारे लिए दुआ कर दो। आलिम साहब मिले, आप हमारे लिए दुआ कर दो। आज हम जो दुआएं कराते फिर रहे हैं, दुआएं लेते नहीं है, दुआएं कराते हैं, दुआ लेते नहीं है। घर में जो माँ बाप बैठे हैं, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी फरमाते हैं औलाद के हक में माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती। उनकी दुआएं लिया करो। कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ, बिजनेस में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ, घरों में सुकून नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। जिस घर में माँ बाप खुश होते हैं, बरकतें उस घर का तवाफ करती हैं, रहमतें उस घर का तवाफ करती हैं। और जिस घर में माँ बाप की आंखों में आंसू निकले औलाद की वजह से, उन घरों से बरकतें रूठ जाती हैं, उन घरों से सुकून रूठ जाता है। जिस घरों में माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएं, उस औलाद के लिए दुनिया में ही परेशानी है। याद रखना मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको एक पैगाम देकर के गुजरना चाहता हूँ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना। आज हमारी औलाद को रात में बुखार आ जाए, हम डुमरियागंज लेकर भागते हैं, यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो कोई सिद्धार्थनगर जिला लेकर जाता है, कोई लखनऊ लेकर के भागता है, कोई दिल्ली लेकर के जाता है, कोई मुंबई लेकर के जाता है। क्या कहता है डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। जरा पूछो इन हमारे बुजुर्गों से, 30-35 साल पीछे जरा पलट कर जाओ। आज तो दौलत की फरावानी है, आज तो अक्सर घरों में कारें हैं, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, रोड पर सवारियों का इंतजाम है। लेकिन अब से 30-35 साल पीछे पलट कर जाओ, इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। जब हमारे बचपन में, आज हमारी
हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए, आज हमारी औलाद को तकलीफ हुई, हमारी रात की नींदें उड़ गई, पूरी रात बैठ करके सराहने गुजार देते हैं औलाद के। कभी सोचा है बचपन में जब हम बीमार पड़े थे, यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसके पैर में जूती नहीं होती, हमें डॉक्टर के पास लेकर गया, यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, इसने अपनी चादर सर्दी में हमको उड़ा दी ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लगे। आज हम उसी बाप को बूढ़े बाप को बोझ समझते हैं। बारिश आई, छाता अपनी औलाद के ऊपर कर दिया, खुद तो भीगता रहा लेकिन अपने बेटे को भीगने नहीं दिया। रास्ते में नहर वगैरह आ गई तो बेटे को ऊपर उठा लिया, बाप खुद भीग गया लेकिन अपने बेटे को भीगने नहीं दिया। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, थोड़ी सी दौलत क्या आ गई उसके पास में, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बाप घर में आंसू बहा रहा है, माँ घर में आंसू बहा रही है। आज माँ बाप कितने हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं और बेटा शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। क्या अच्छा होता कि आज बाप हमारे पास में होता, माँ हमारे पास में होती, वो हमारे लिए दुआएं कर रहे होते, अल्लाह हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमाता। मेरे